Biotechnology and genetic modification. We will take a quick review of biotechnology and genetic modification. At first, explain the role of yeast in the production of bread and ethanol. So, what's the role of yeast in the production of bread and ethanol? Okay, fungus is yeast. Okay, yeast is fungus. Okay, the flour contain amylase, starch, and gluten. Add salt, yeast, and water in the flour. Add water to make the dough. Then what happen? What will be the role of this water? Water will activate the enzyme. What will be the role of water? Water will activate the enzyme amylase. And what's the role of this amylase enzyme? It will digest the starch and convert it into, of course, pehle maltose, and then maltase will convert it into glucose. But we will write down it will digest the starch into simple sugar. You have to use the word digest rather than writing convert. Okay? Knead the dough by continuously stretching and folding, and then leave it for 1 to 2 hours at 26 degrees Celsius. Okay? Gluten give plastic texture to the dough. Yeast will respire. At first, yeast will respire anaerobically. At first yeast will respire aerobically because initially oxygen is present. Therefore, yeast will respire aerobically, and when all the oxygen get used up, ये सारे biotechnology के इसमें आपने लिखना है, when all the oxygen get used up, then it will start respiring anaerobically. ठीक है? And we know that when the yeast it is respire anaerobically, then it will release what? Carbon dioxide and alcohol. Now, in the bread making, what's the role of this carbon dioxide? Carbon dioxide क्या करेगा? It will raise the dough. ठीक है? And carbon dioxide get trapped because there is a gluten. Gluten is a plasticky texture. Therefore, it will trap the bubbles of the carbon dioxide, due to which what happen? When the carbon dioxide will expand, then what happen? It will cause the dough to rise. Now spread the dough in the baking tin and bake it at 200 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. Now this temperature is very important. सारे biotechnology के इसमें temperature is very important. And now the dough will raise further because carbon dioxide will expand due to high temperature. Why it will expand? Because the carbon dioxide will expand because of the high temperature. When the temperature will increase, then there will be the kinetic energy of the carbon dioxide molecule. Therefore, it will cause the dough to expand. Now, hole will appear on the surface of the dough, due to which, from which alcohol will escape. ठीक है? फिर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि व्हाट हैपेंड टू द ईस्ट, व्हाई द डो विल नॉट इंक्रीज फर्दर. तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज द हाई टेम्परेचर विल किल द ईस्ट. जो हाई टेम्परेचर उसने क्या कर दिया? किल कर दिया ईस्ट को. हर बायोटेक्नोलॉजी के आंसर में आपका व्हाई द प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म फर्दर. तो प्रोडक्ट क्यों नहीं दोबारा बनेगा? फर्दर क्यों नहीं बन रहा? व्हाई इट इज नॉट, व्हाई द प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म फर्दर? नंबर 1, बिकॉज ऑल द सबस्ट्रेट आर यूज्ड अप. पहला आंसर क्या होगा कि आखिर डो फर्दर क्यों नहीं रेज हो रहा? तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑल द सबस्ट्रेट यूज्ड अप, जितना भी सबस्ट्रेट है वो यूज्ड अप है. हाई टेम्परेचर ने किल कर दिया ईस्ट को. ठीक है? इफ हाई टेम्परेचर हैज किल्ड द ईस्ट, देन ऑफ कोर्स द डो कैन नॉट रेज फर्दर. ठीक है? नाउ द रोल ऑफ fungus in alcohol making. Now, what is the role of fungus in alcohol making? We will take, of course, there should be a substrate. हर इसमें हम substrate लेंगे. वहाँ पे substrate कौन था? The substrate was flour. और flour में कौन था? आपका starch था. यहाँ पे substrate कौन है? आपका germinating barley seed. It could be germinating barley seed. It could be grapes or any fruit juices are used to make alcohol. At first, we will grind and crush the seed. Always remember it. Why we are going to grind and crush the seed? So that the cell wall get ruptured and release the substrate. Seed के अंदर आपके substrate present है ना, carbohydrate present है. So that when the cell wall get ruptured, so that the carbohydrate will come out. ठीक है? Okay? यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि it will increase the surface area to volume ratio for the action of enzymes. यहाँ पे ये वाली बात नहीं बोलनी. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? It will cause the cell wall to rupture so that the substrate will come out. ठीक है?
Now, and then add water and yeast into the container and leave it for 15 to 20 days. Now, what's the role of yeast again? Yeast will start when the yeast will get enough food supply, that is starch or sucrose, then what happen? It will start growing rapidly and it will increase in number. And then again, it will first respire aerobically and then anaerobically and release what? Carbon dioxide and alcohol. Now, फिर इसमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर दीज सेडिमेंट्स, इस सेडिमेंट्स क्या है, व्हाट आर दीज सेडिमेंट्स इन द अल्कोहल. तो सेडिमेंट्स क्या होंगे आपके? दीज आर द ईस्ट सेल्स, डेड ईस्ट सेल्स, remains of substrates, ठीक है. Then the liquid is drained from the container. Now alcohol is separated from the liquid by distillation. Now why the alcohol will not produce further? Alcohol क्यों नहीं produce हो रही further? Because high temperature या high concentration of alcohol, यहाँ पे temperature नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्योंकि high concentration of alcohol बन रही है. This high concentration of alcohol will kill the yeast. So again वही वाले आंसर आपके. Why alcohol will not produce further? Number one, high concentration of product, and what is that product? The product was alcohol, so it will kill the yeast. Number one. Number two, all the substrate are used up. Substrate सारा का सारा क्या हो गया? Used up हो चुका है. ठीक है. Now move on to the parts of fermenter. Fermenter में कुछ चीज़ें बहुत important है, बल्कि पूरी बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज़ बहुत important है. कभी भी whenever the examiner asks you why it is needed to be sterilized, sterilize क्यों करना है किसी भी चीज़ को, तो why it is needed to be sterilized, तो sterilize का reason क्या होता है? To kill the pathogen, to kill the pathogen, यहाँ लिखा होगा, to kill the pathogen, to prevent contamination and to prevent unwanted changes. हम इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं? We will sterilize the container. ठीक है. Now so this container is needed to be sterilized. Why it is needed to be sterilized? In order to kill the pathogen, number one answer. Number two, to prevent contamination and to prevent unwanted changes. Now as you can see in this fermenter is covered by cooling jacket. Now what's the role of this cooling jacket? As you can see over here, the water is moving in and from here the water will move out. So it is the cold water which is moving in and the hot water will move out. Now why it get hot? Because what is the role of the cooling jacket? Cooling jacket will maintain the temperature of the fermenter. Number one. Number two, why the temperature of the fermenter will increase? आखिर increase क्यों हुआ? Why we need cooling jacket? Cooling jacket की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि why the temperature will increase? Because of the chemical activities or enzymatic activities that are going on inside the fermenter. It will cause the heat to be released, and this heat will denature the enzyme. आपका जो heat अगर ज़्यादा होगी तो आपका denature हो जाएगा enzyme. So in order to prevent the enzyme from being denatured, the cooling jacket is used. तो कभी भी fermenter में आप ये नहीं बोलेंगे कि why we are using cooling jacket, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? In order to maintain the temperature constant. Why? In order to maintain the temperature constant, because the chemical activity that is going on inside the fermenter will release heat, and that heat could denature the enzyme. So that's why in order to maintain the temperature constant, cooling jacket is used. Clear? Now, as you can see here, that from this part, this inlet, from this part, a sterilized air is moved in. यहाँ से हम sterilized air को blow करते हैं in. Now what is the role of this air? Air का role यहाँ पर क्या होगा? The role of air is to provide oxygen for aerobic respiration. Number one. Number two, what is the role of this sterilized air? Again why? To prevent contamination, to kill pathogen and to prevent unwanted changes. ठीक है? Now this sterilized air, ये जो sterilized air होता है, it should be blown through a metallic plate which is known as sparger. Now this metallic plate contains holes in it.
Now what is the function of this holes? Number one, क्या function होगा इस hole का? For to increase the surface area to volume ratio for efficient mixing of oxygen with the culture solution. ठीक है, यहाँ से आपका सारा ऑक्सीजन आपका जो रिलीज हो रहा है, it get evenly mixed with the culture solution. यहाँ पे culture solution होता है. What is the meaning of culture solution? Culture solution मतलब सुक्रोज दे दिया आपने या ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट की सोर्स देंगे, प्रोटीन की सोर्स देंगे. टेम्परेचर शुड बी मेंटेन, पीएच शुड बी मेंटेन इस कल्चर सोल्यूशन का. वाई वी आर प्रोवाइडिंग कल्चर सोल्यूशन? वी आर प्रोवाइडिंग फूड टू द बैक्टीरिया और टू द फंगस. जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे ग्रो करा रहे हैं उसको वी आर प्रोवाइडिंग इट विद द फूड. तो when the organism will get the food, then it will reproduce and grow rapidly. वो grow करेगा rapidly and it will increase in number. ठीक है, समझ में आ गई? तो कल्चर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कल्चर सोल्यूशन मतलब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई भी लिख सकते हैं हम. इन केस ऑफ इंसुलिन आपने स्पेसिफिक सोर्स लिखनी है विच इज सुक्रोज, एंड सोर्स ऑफ प्रोटीन विच इज मिनरल आयंस. ठीक है. नाउ देन दिस इज रिवॉल्विंग पैडल. दिस रिवॉल्विंग पैडल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहते हैं इसको? पता है इस रिवॉल्विंग पैडल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस रिवॉल्विंग पैडल को? मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा अभी. इम्पेलर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इम्पेलर? इम्पेलर का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इम्पेलर? इज टू मिक्स द कंटेंट वेल. एक सिंपल सी चीज है ना, एक मिक्स करने वाली चीज है ये. तो इट्स फंक्शन इज टू मिक्स द कंटेंट वेल, यानी आपकी ऑक्सीजन को विद द कल्चर सॉल्यूशन अच्छे से इवनली मिक्स कर दे. नंबर वन, टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन. ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है. What is the role of impeller? Is to mix the culture solution with oxygen evenly to create uniform mixture, to keep microorganisms suspended, yani prevent it from sinking, enable microorganism to always have access to nutrients. इनकी यही specific answers है, but you should know about all these answers. ठीक है. Now अब तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्मेंटर. तो फर्मेंटर के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या यूज किया? हमने स्पैरगर यूज किया. स्पैरगर क्या है? एक मेटालिक प्लेट है जिसके अंदर होल्स होते हैं. उसका फंक्शन क्या हमने डिस्कस कर लिया. और दिस इज स्पैरगर. फिर ये चीज़ क्या है आपकी? ये इम्पेलर है. एंड देन दिस इज द इनलेट थ्रू विच वाटर विल मूव इन. नाउ फिर इसमें इस डायग्राम में बनी भी नहीं है, यहाँ पे हम एक और इनलेट होता है जिसके थ्रू हम क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? कल्चर सोल्यूशन. नाउ और फिर जो भी आपका सब्सटेंस बन गया, वट एवर सब्सटेंस इज मेड, जिसको भी हम सिंथेसाइज कर रहे थे, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द फर्मेंटर. यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे. ठीक है, रिमूव कर देंगे. फिर हम उसको सेपरेट करेंगे बाय फिल्ट्रेशन. क्लियर? Now the pH should be maintained. Now the motor is located outside. Motor क्यों located है outside? So that it will not occupy the space और आपकी product कम ना बने, और it is easier to handle it. ठीक है. If there is any malfunctioning in the motor, then it can be rectified quickly. Okay. Now how the penicillin is produced? At first we should know about what is penicillin. Penicillin क्या है? Penicillin is an antibiotic. एंड एंटीबायोटिक क्या होते हैं? इट इज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ फंगल सेल. पेनिसिलिन एक्सक्रीटरी वेस्ट है, फंगल सेल का बना है. एंटीबायोटिक आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट बैक्टीरिया का और फंगल सेल का हो सकते हैं. ठीक है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंटीबायोटिक? द फंक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक इज टू किल द बैक्टीरियल सेल ओनली. सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को किल करता है, बाकी सबको किल नहीं करता. ठीक है. तो पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक एंड इट्स फंक्शन इज टू किल द बैक्टीरिया, and it is an excretory waste of fungal cell as the rate of fungal growth slows down. ठीक है. Now how this penicillin is formed? penicillin कैसे बनता है? हम again यही we will use. कभी भी एग्जामिनर आपसे बोलेगा describe the large scale production of anything, किसी की भी अगर आपको large scale production एग्जामिनर आपसे बताने को कह रहा है, then what will you write? You will say it will be produced in the fermenter. कभी भी large scale production होगी. और बाकी सारी बातें आपने यही लिखनी है जो अभी हमने पढ़ी है. क्या क्या पढ़ी है हमने? कि we will produce it in the fermenter. The fermenter should be sterilized. अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, let's suppose 10 मार्क्स का है, तो आप बताएंगे कि why it should be sterilized. वही सारी बातें. To prevent contamination, to prevent unwanted changes,
और टू किल द पैथोजन, सबसे पहला आंसर शुड बी टू किल द पैथोजन, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि एयर इज ब्लोन इन थ्रू स्पैरगर, स्पैरगर क्या होते हैं, इसके अंदर फाइन होल्स होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ ऑक्सीडेंट टू गेट मिक्सड विद द कल्चर सोल्यूशन। और वाई वी नीड ऑक्सीजन, आखिर ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी फॉर ग्रोथ, एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्यों चाहिए, फॉर ग्रोथ ऑफ जो भी वट एवर सब्सटेंस वी वांट टू ग्रो इन, क्योंकि हम यहाँ पे पेनिसिलिन बनाने जा रहे हैं विच इज एन एंटीबायोटिक, तो पेनिसिलिन के लिए हम यहाँ पे फर्मेंटर के अंदर किसको ग्रो कराते हैं, वी ग्रो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज अ फंगस, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है। नाउ फिर we will fill it with the cultured solution, हम इसको फर्मेंटर को किससे फिल कर देते हैं, with the cultured solution। अगेन कल्चर सोल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट की सोर्स कौन होगी, आपकी सुक्रोज होगी, आपकी प्रोटीन की सोर्स कौन होगी, यहाँ पे देखते जाओ ताकि नोट से देख के आराम से याद हो जाए। प्रोटीन की सोर्स यहाँ पर क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की सोर्स, आप लैक्टोज भी लिख सकते हैं, आप सुक्रोज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएंगे तो आप लैक्टोज लिख दीजिए। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ द पेनिसिलियम। प्रोटीन की सोर्स वुड बी कॉर्न स्टीप लिकर, लेट सपोज तुम्हें कॉर्न स्टीप लिकर नहीं याद आ रहा तो आप लिख दीजिएगा मिनरलाइंस, ठीक है। नाउ टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट 26 डिग्री सेल्सियस, जितने भी बायोटेक्नोलॉजी की चीजें होंगी ऑल ऑफ देम आर हाईली टेम्परेचर एंड पीएच सेंसिटिव, तो आप टेम्परेचर हमेशा अबव 26, यहाँ पे तो स्पेसिफिक कर दीजिएगा पेनिसिलिन प्रोडक्शन में 26 डिग्री सेल्सियस, बाकी सब में अगर एग्जामिनर पूछता है हाउ द लार्ज स्केल ऑफ एनीथिंग विल बी डन, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर को आप 26 से अबव और 40 से नीचे रखिएगा, ठीक है। नाउ पीएच आप मेंटेन कर देंगे बिटवीन 5 एंड 6, फर्मेंटर एंड द मीडियम आर स्टेरिलाइज, वही रीजन जो हमारे स्टेरिलाइज का जो रीजन है वही बताएंगे हम। और इसके बाद आपने स्टार्टर कल्चर ऑफ फंगस पेनिसिलियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। मीडियम इज स्टर्ड कंटिन्यूसली, आपका ये जो मीडियम है इसको हम स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली। पेनिसिलियम को जब इतना ढेर सारा, मतलब पेनिसिलियम विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ फूड सप्लाई, यानी स्टार्च मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, तो इट विल ग्रो, वो रिप्रोड्यूस करेगा और इंक्रीज इन नंबर होगा, ठीक है, एंड इट विल एक्सक्रीट आउट पेनिसिलिन इन द कल्चर सोल्यूशन। Now, when the sufficient amount, ज़्यादा amount of penicillin कब produce होगी, when the penicillium growth when the growth of the penicillin will stop, then it will excrete out large amount of penicillin in the culture solution. Now, when the sufficient amount of penicillin is produced in the culture solution, तो हम उसको harvest कर लेंगे from this region, ठीक है, harvest it from the bottom and then separate it by filtration, ठीक, from the culture solution by filtration, clear? तो कोई भी चीज, लेट सपोज यहाँ पे तो मैंने आपको पेनिसिलिन प्रोडक्शन बताई है, पेनिसिलिन के अलावा किसी भी चीज की लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा तो आपका पैटर्न ऑफ आंसर शुड बी सेम, क्लियर? ये नोट्स आप लोगों के पास हैं, आप इसमें से कर लेना, ठीक है। नाउ प्लीज, हाँ बोलो। इसमें वो क्वेश्चन जैसे पूरा तो नहीं पूछ सकता, पर वो जैसे पूछ भी सकता है, पूछ भी सकता है, पूछ भी सकता है, पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 5 और 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है आपसे, और इसके अलावा क्योंकि आ चुका है ये, और लेकिन पहले तो 10 मार्क्स का आता था, लेकिन 5 और 6 मार्क्स का भी आ सकता है आपके। और फिर आपका कूलिंग जैकेट का फंक्शन पूछ सकता है, why the container should be sterilized, what is the role of impeller, why culture solution are used, what is the culture solution that we can use, what is the temperature, optimum temperature कितना होगा, ये सारी बातें पूछ सकता है। लेकिन स्पेसिफिक अगर पेनिसिलिन के बारे में पूछेगा तो आपको ये पूरा आंसर लिखना होगा, समझ में आ गई, क्लियर? और अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसी भी, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन किसी की भी करेगा तो आपने यही इसी सेम पैटर्न पे आंसर लिखना है, बट टेम्परेचर आप क्या बोल देंगे, फ्रॉम 26 टू 40 के दरमियान कोई भी टेम्परेचर आप बोलेंगे, नॉट मोर देन 40, क्लियर? नाउ अब इसके बाद दिस इज नोन एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम पेनिसिलिन बना रहे हैं, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। अब हमारे पास कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब क्या होते हैं कि आफ्टर एवरी बैच आपका जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन आपकी कलेक्ट हो गई, आपने यहां से हार्वेस्ट कर ली सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पेनिसिलिन, तो आप क्या करेंगे, आफ्टर एवरी बैच आप पूरे कंटेनर को आप दोबारा से क्लीन करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे, फिर से कल्चर सॉल्यूशन को फिल करेंगे। सच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रोडक्ट आपकी बैचेस में बनेगी। इसका फायदा क्या होता है आपका
कि आप यू कैन चेक द प्रोडक्ट, आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट को। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अनप्रोडक्टिव टाइम आपका स्पेंड होता है इन क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजिंग द इक्विपमेंट। क्लियर? नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन सी टेक्निक है? विच इज यूज टू ट्रांसफर द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। हम कैसे जीन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर? बाय यूजिंग वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? दे आर बैक्टीरिया, आपका वायरस हो सकता है, आपका वेक्टर। नाउ द ऑर्गेनिज्म दैट एक्वायर अ फॉरेन जीन, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जांपल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो है मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। ये आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, अच्छे से आता है या पढ़ाना पड़ेगा? बता दो। हाँ हादी, नहीं सही, पढ़ा दूं? नहीं सही है। सही है। तो मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन हमें आता है। और इसके बाद सेम विद पेस्ट रेजिस्टेंस भी बोलेगा तो भी आप उसी तरीके से बताएंगे। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को भी आप उसी तरीके से बताएंगे। पेस्ट रेजिस्टेंस में क्या है? आप सर्टेन स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियम बेसिलस प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन जो किल करता है कैटरपिलर एंड अदर इंसेक्ट लार्वा। तो हम इस बेसिलस में से किसको हार्वेस्ट कर लेंगे? वी विल हार्वेस्ट द जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, जीन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। और उस जीन को हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे? इन द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर हम इंट्रोड्यूस करा देंगे। प्लाज्मिड क्या होते हैं? दे आर सर्कुलर बैक्टीरिया। उसके अंदर हम इसको सर्कुलर बैक्टीरिया नहीं, सर्कुलर डीएनए, उसके अंदर हम इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। और फिर प्लाज्मिड को हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे? अगेन बैक्टीरिया के अंदर। वही बिल्कुल जिस तरह हम इंसुलिन प्रोडक्शन में करेंगे वैसे ही काम हम इसके अंदर करेंगे। वी विल ट्रांसमिट प्लाज्मिड इन दी बैक्टीरिया और फिर बैक्टीरिया की हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर देंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगैन वही फर्मेंटर की सारी बातें आप लिखेंगे कि कूलिंग जैकेट शुड बी यूज ताकि टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे। ठीक है। नाउ फिर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में ग्लाइफोसेट इज अ हर्बिसाइड and which kills any green plant but become harmless in the soil। ठीक है। तो what is the role of this herbicide? herbicide का रोल क्या होता है कि they kill the crop plant as well। आपके herbicides जो होते हैं they are harmful for the crop plant as well। besides weeds they are harmful for the crop plant as well। ठीक है। So we get to know that there is a bacteria which release an enzyme which can destroy, which can break down the glyphosate enzyme। ठीक है। तो हम क्या करेंगे हादी? हमने gene for that enzyme from the bacteria उसको हमने isolate किया और उस जीन को हम किसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे? अगैन हम किस में इंट्रोड्यूस करा देंगे? प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड को किसके अंदर डालेंगे? बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर। और फिर उस बैक्टीरिया को किसके अंदर डाल देंगे? इन द कल्चर सोल्यूशन ऑफ द क्रॉप प्लांट। कल्चर सोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट में डालेंगे तो आपके क्रॉप प्लांट के अंदर ये चला जाएगा जब इनिशियली जब वो ग्रो कर रहा है, पूरा वेल डेवलप्ड क्रॉप प्लांट नहीं। तो it will diffuse inside the crop plant and this crop plant become resistant to herbicide। now when we are applying herbicide वो chemicals होते हैं जो kill करते हैं wheat को। now when we are applying herbicide तो it will not cause any harm to the crop plant, it will cause harm to the wheat plants only। सिर्फ और सिर्फ unwanted wheat plants को सिर्फ और सिर्फ harm पहुंचाएगा। ठीक है। clear? so now एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे आपको याद करना है कि एडवांटेजेस क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के? शेल्फ लाइफ आपकी इंक्रीज कर देती है। ओनली डिजायरेबल जीन कैन बी ट्रांसफर्ड। आपके आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता था? होल सेट ऑफ जीन ट्रांसफर होती थी। यहाँ पे क्या होता है? आपकी ओनली डिजायरेबल जीन ट्रांसफर होती है। इंक्रीज वेरिएशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन क्रिएट क्रॉप दैट आर पेस्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर द एथिकल वंस। Many people, particularly religious sect, have a large issue with the DNA of human or animal being altered by man because we are causing the alteration of the human gene. So it is totally unethical. If we begin to pick and choose the trait we want people to have, then the undesirable or abnormal trait would be eliminated. The diversity of the population, because of course if we want to pick and choose द जीन दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ग्रीन कलर की आइज पसंद है, अपने बच्चे की सारी ग्रीन कलर की आइज वाले बच्चे आ रहे हैं तो व्हाट अबाउट द ब्राउन आई कलर? ब्राउन आई कलर के अंदर क्या होगा? तो आपकी जो वेरिएशन है वो क्या हो जाएगी? इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है।
इट हैज़ नॉट बिन स्टडीड फॉर अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने अभी बहुत, इट इज़ इन इन्फेंसी स्टेज, तो इसके हार्मफुल इफेक्ट इज स्टिल अननोन। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, ठीक है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट इज स्टिल अननोन, ठीक है। तो मे बी इट विल कॉज अनडिजायरेबल इम्पैक्ट। नाउ पेक्टिनेज, पेक्टिनेज इज एन एंजाइम विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जूस। पेक्टिनेज क्या होता है? पेक्टिनेज इज एन एंजाइम which break down the cell wall. सेल वॉल में जो पेक्टिन प्रोटीन होती है, सेल वॉल कंटेन पेक्टिन प्रोटीन, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो व्हेन इट विल ब्रेक डाउन द पेक्टिन प्रोटीन, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस विल बी ईजियर, तो मोर जूस, मोर क्वांटिटी ऑफ जूस विल बी प्रोड्यूस, ठीक है। नाउ फिर एक और आपके इसमें है, डिस्क्राइब हाउ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर यूजिंग एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया is an example of biotechnology. State two reasons why bacteria are useful in biotechnology such as in development of biological washing powder. बैक्टीरिया आखिर क्यों यूजफुल है बायोटेक्नोलॉजी में? नंबर वन, रैपिड रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया की। नंबर टू, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। नंबर थ्री, चीपर टू प्रोड्यूस है। नंबर फोर, अगर हम इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करते हैं बैक्टीरियल जीन के अंदर, तो देयर इज नो एथिकल कंसर्न्स, कोई एथिकल कंसर्न्स नहीं होते रिलीज, ठीक है। नाउ हाउ द वॉशिंग पाउडर रिमूव फूड स्टेन्स। फूड स्टेन्स कैसे रिमूव कर सकता है? दैट मीन्स अगर फैट का स्टेन है तो इट मस्ट कंटेन, आपके बैक्टीरियल वॉशिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, इट शुड कंटेन लाइपेज एंजाइम होगा इसके अंदर, तो वो डाइजेस्ट कर लेगा लाइपेज को। और अगर ब्लड स्टेन है तो ब्लड स्टेन के लिए इट शुड कंटेन द प्रोटीएज एंजाइम which will digest the protein. So that's why that blood stain can be removed. Now अगर एग्जामिनर कहता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर करना है यूजिंग एंजाइम फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो आप बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप बताएंगे कि बैक्टीरिया इज पुट इन द फर्मेंटर, फर्मेंटर के अंदर हम क्या करेंगे, वही कल्चर सोल्यूशन प्लेस करेंगे। एनारोबिक, इनिशियली वो एरोबिकली रेस्पायर करेगा, देन एनारोबिकली रेस्पायर करेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जो हमारा फॉर्मेंटर वाला है वही सेम पैटर्न पे हम अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेम एंड, ये सारे आंसर हो गए। नाउ फिर टेम्परेचर, अगेन वही वाली चीज मैंने आपको जो बताई कि टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस। यूजेस मोर एनर्जी दैन, what is that, yeah, this one. Explain why the manufacturer recommend washing at 30 degree Celsius and not above 60 degree Celsius. क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम वर्क बेस्ट करेगा और 60 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम क्या हो जाएगा आपका, इट विल गेट डीनेचर्ड एंड मोर एनर्जी इज यूज्ड। आपकी खामा कहीं ज्यादा एनर्जी यूज हो रही, तो वाई वी आर यूजिंग मोर एनर्जी, बैक्टीरिया आपका किल भी हो सकता है एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। नाउ फिर इसके बाद ये वाली चीज कि हाउ टू प्रोड्यूस लैक्टोज फ्री मिल्क। लैक्टोज फ्री मिल्क हम कैसे बना सकते हैं? तो लैक्टोज फ्री मिल्क, हाउ टू प्रोड्यूस द लैक्टोज फ्री मिल्क, वी कैन प्रोड्यूस लैक्टोज फ्री मिल्क बाय ट्रीटिंग द मिल्क विद लैक्टेज एंजाइम। हमने लैक्टेज एंजाइम मिल्क में डाल दिया, तो मिल्क कंटेन लैक्टोज शुगर, तो दिस लैक्टेज एंजाइम विल ब्रेक डाउन द लैक्टोज शुगर इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, तो दिस मिल्क विल बिकम लैक्टोज फ्री। मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि दैट इन द मिल्क दिस लैक्टेज एंजाइम विल बी प्रेजेंट, तो इट इज कंटेमिनेटेड मिल्क। ये मिल्क क्या होगा आपका, कंटेमिनेटेड होगा, एंड वी डोंट वांट आवर मिल्क टू बी कंटेमिनेटेड, नंबर वन। नंबर टू, आपको लैक्टेज को आप रीयूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रीयूज लैक्टेज, क्योंकि एक दफा आपके एंजाइम आपके मिल्क के साथ चला गया, प्रोडक्ट के अंदर आपकी जो लैक्टोज फ्री मिल्क है उसके अंदर एंजाइम लैक्टेज भी है, वो उसी के साथ चला गया, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रीयूज द एंजाइम। तो जब हम रीयूज नहीं कर सकते तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, चीपर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्लियर? नाउ सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस द लैक्टेज फ्री मिल्क, हमने कैसे लैक्टेज फ्री मिल्क बनाया, वी विल यूज द एल्गिनेटेड बीड्स, और इन एल्गिनेटेड बीड्स को बनाने का एक तरीका होता है, आपको इसको बना जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इंक्लूडेड in your syllabus. These are the alginated beads, these are formed, and within the alginated beads the lactase enzymes are present. These lactase enzyme are immobilized, yani it cannot move now, ठीक है। Now we will fill these beads within this tubing, इस tubing के अंदर हम fill कर देंगे, ठीक है। Now, why the large amount of bead is filled in the tubing? In order to increase the surface area to volume ratio
for the action of enzyme. Now pour the milk, यहाँ से हम with lactose milk हम यहाँ से pour करेंगे. This milk will pass over this beads, and within the bead we know that lactase enzyme are present, but they are immobilized. They cannot mixed with the milk, but they can convert the lactose into glucose plus galactose. So the milk that we are getting from the bottom is lactose free milk. Of course, it will not be. We cannot produce the lactose free milk in a one try. एक one go में हमें lactose free milk नहीं मिलेगा. We have to pass this with lactose milk through this tubing again and again. ठीक है? Now, the greater the size of the tubing in which the beads, packed alginated beads are present, in which immobilized are present, the more lactose free milk would be, क्योंकि इसका surface area for the action of enzyme will be increased. Clear? समझ में आ गई? इसके हम कुछ questions देख लेते हैं. Explain how heating. अच्छा, and then next we can reuse the. Now what is the advantage of this immobilized enzyme? We can reuse the enzyme, and then the high temperature of the milk cannot denature the enzyme. कभी भी enzyme को हम kill नहीं कहते, cannot denature the enzyme, so we can reuse it. ठीक है, तो आपकी इसकी एक्सपेंसिव भी नहीं होगा. ठीक है, तो एक्सप्लेन हाउ हीटिंग मिल्क इन स्टेप 2. ये हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं. काउज मिल्क फ्रॉम फार्म हमने कलेक्ट किया, हीट किया मिल्क को हमने टू हाई टेम्परेचर फॉर 15 सेकेंड्स. अलाउ मिल्क टू कूल टू 20 डिग्री सेल्सियस. पोर मिल्क इनटू अ कंटेनर ऑफ बीड्स कंटेनिंग एंजाइम. इमोबिलाइज्ड एंजाइम है, आपको पता होना चाहिए. मोबिलाइज्ड एंजाइम नहीं है, इमोबिलाइज्ड है, तभी तो मिक्स नहीं होता आपके मिल्क के साथ. कलेक्ट लैक्टोज फ्री मिल्क. Stored lactose free milk at 2 degree Celsius in sterile bottle. Again, sterile bottle का function क्या? वही, to kill the pathogen, to prevent unwanted changes and to prevent contamination. Now question, how the heating the milk in step 2 in figure 5.1 ensure the hygienic preparation of lactose free milk. कैसे करेगा? वही again कि वो किल कर देगा बैक्टीरिया को यानी पैथोजन को और प्रिवेंट करेगा अनवांटेड चेंजेस को. 1 मार्क है तो आप बोलेंगे it will kill the bacteria. Now explain why the milk must be cooled in step 3 before it makes contact with the enzyme. क्यों करें? So that high heat will not denature the enzyme. जो आप initially आपकी जो high heat initially आपके जितने भी contaminant हैं वो सब आपके destroy हो जाएं and then high heat will not denature the enzyme. ठीक है, और आपका जो lactose है वो broken down ना हो, digest ना हो, और active site की shape आपकी जो enzyme है उसकी क्या रहे, मेंटेन रहे, और एंजाइम विल नॉट फिट द सबस्ट्रेट. ठीक है, क्योंकि अगर एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विल चेंज then the substrate will not be able, your lactose will not be able to fit the substrate, and will fit the substrate which is lactose. अगर if at high temperature enzyme की active site अगर आपकी change हो गई, then the lactose which is a substrate will not be able to fit into it. ठीक है, that's why it is cooled down, and then हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5 में आपके इसको pour milk into a container or beat contain enzyme and allow milk to cool down to 20 degree Celsius. क्यों किया हमने cool down to 20 degree Celsius? So that enzyme will not get denatured. और फिर denature के जो हमारे points होते हैं वही वाले कि active site आपकी change ना हो जाए, so that substrate will not fit into it, substrate उसके साथ fit नहीं होगा and product will not form. ठीक है, now फिर आपका सजेस्ट व्हाई द एंजाइम्स आर केप्ट इन द बीड्स. बीड्स में हमने क्यों रखा इन स्टेप 4 रादर देन मिक्स्ड एज एन एंजाइम सॉल्यूशन विद द मिल्क. वही जो मैंने अभी आपको बताया. मार्क्स स्कीम से हम इसके आंसर देख लेते हैं सो दैट वी कैन रीयूज द एंजाइम, है ना, वरना अदरवाइज अगर हम बीड्स में नहीं डालेंगे तो वो तो मिल्क के साथ ही चला जाएगा. अगर हम रीयूज कर सकते हैं एंजाइम को तो इट इज चीपर, आपका जो मिल्क होगा वो चीपर होगा. नो एंजाइम लेफ्ट इन द मिल्क यानी कंटामिनेटेड मिल्क नहीं होगा. So the milk does not need to be purified. Enzymes more stable होगा क्योंकि अगर आपके alginated beads के अंदर है, immobilized enzyme है तो they are more stable, less likely to denature होगा. It will not affect the taste. ठीक है, और drinking the enzyme might trigger allergies. तो ये सब possible answers हैं आपके, कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, now अब ये question हम देख लेते हैं, यही वाला again. Suggest the effect that crushing and boiling will have on the cells of the tuber. Again crushing क्यों? To break the cell wall. Boiling क्यों कर रहे हैं? Why we are boiling it? ये देख लेते हैं हम हो क्या रहा है यहाँ पे. Crushing and boil tuber chewed for several minutes.
बॉयल क्यों कर रहे हैं हम, वाई वी आर बॉइलिंग इट, ताकि आपकी जो क्रश करने से भी आपके सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाएगी, बॉइलिंग करने से एंजाइम इसके डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दे हैव बीन क्रश्ड एंड बॉइल्ड द cassava tuber आर च्यूड फॉर सेवरल मिनट, च्यू क्यों किया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम, क्योंकि हम जब च्यू कर रहे हैं तो आपके सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज, वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, विद द स्टार्च, उसके साथ स्टार्च विच इज प्रेजेंट इन कसावा प्लांट उसके साथ मिक्स हो जाएगा एंड इट विल डाइजेस्ट इट। समझ में आ गई वाली बात। नेम द प्रोसेस, हादी समझ में आ रही बेटे बातें। After they have been crushed and boiled, the cassava tubers are chewed for several minutes. Chew क्यों किया, ताकि उसका surface area to volume ratio for the action of enzyme will increase. आपका amylase के साथ वो mix होगा, amylase will digest the starch, and what happened to the starch during this time, amylase will mix with the, यार please mic बंद कर दो, it will digest the starch and convert it into maltose. Name the process that must occur in the container to produce alcohol. कौन सा process होना चाहिए, yes हादी। फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं और फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसकी इक्वेशन क्या है आपकी, हमें इसकी इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज will break down in the absence of oxygen and it will release what, alcohol plus carbon dioxide, either write whole word equation or chemical equation, डोंट मिक्स द इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि वर्ड इक्वेशन आपकी जो केमिकल इक्वेशन है इट शुड बी balanced. Now name the type of organism whose spores are found in the soil and floating in the air which will bring about the production of alcohol. कौन बनाता है आपका, फंगस, फंगस बनाता है ना अल्कोहल, आपको पता होना चाहिए फंगस बनाता है अल्कोहल। Now why the sediments in the bottom of the container increase in quantity as the container is left to stand for several days. क्यों सेडिमेंट्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों क्यों इंक्रीज होगी इसकी सेडिमेंट्स की क्वांटिटी, why the sediments quantity will increase